Okay, now I think it's time to start our session. Good evening, everyone. I am Sekhar Suman, the host of today's event. Before I take the pleasure of introducing our guest speaker, I want to express my gratitude to the HOD of Triple E Department, Mr. Chandrasekhar Singh Sir, and the member of Student Councils for all their hard work to make this event possible. I am excited to be here and also excited about all the amazing conversation which we are going to have today. Our guest speaker will give us a talk about strategies and grabbing the opportunities through GATE, how to prepare for GATE, right method to study, right study material to prefer. Now, there is a brief of our speaker of today's event. He has conducted 400 plus seminars and webinars for the engineers nationwide. He is an NITian, a MBA graduate, and also published 3 books about counselings of the students. He has done his diploma from the Indian Society for Training and Development. Our guest is a motivational speaker, a career counselor, and have 26 years of experience. He has conducted the program on career counseling on Doordarshan as well as other channels. So, a warm welcome to our speaker, Mr. Priyans Vardhan Jain, sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you, Good sir. evening. Thank you so much. So, Right. sir, Right without now, wasting any time, I would like to hand over the stage to our respected speaker. But before this, I would like to inform you that all the queries will be taken at the last of the webinar. And now I'd like to request sir to address the most awaiting audience. Sir, continue. two things. First of all, am I audible, Sekhar? Yes, sir. You are Another absolutely thing, audible. are you able to see PPT? Yes, sir. Okay, right. So I'm starting. Right. So, Sekhar has already introduced me. Thanks, Sekhar. Thanks for this. See, I'm also an engineering graduate, so I know how we pass the exam. I'm one of the person who speaks straightforward. I have done engineering from one of the government engineering college, that is NIT Raipur, and I know how we pass the exam, how the semester after semester goes on, right? And at the end of the semester, once we go for the exam, and say any tough subject is there, for some of you, like EMFT is a tough paper, say for example, and on that day, you go to that temple nearby you and you pray to God, just 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 pass me for this particular paper, and I guarantee you that I will start studying from the start of the semester, from the next semester, right? It happens, right? And what happens after that particular paper? You forget that your promise that you have made to the God, and you continue on the same manner till 8th semester, right? This story goes on since the beginning of engineering, and that it still continues, right? हम कभी नहीं सोचते कि क्या सामने जो आता जाता है वो हम करते चले जाते हैं, और इंजीनियर्स की हमारी एक और आदत और होती है कि वी डू नॉट लुक टू द थिंग्स that are invisible to us, like we do not imagine much. Instead of that, it means I am talking about the our career. Whatsoever comes into the path, we take it as it is, right? This is the general idea, that what we do, like say a particular commission is given to you, you have to submit on of this particular date, a 15 days time is available to you. What happens generally for most of the students, for the 14 days we do not take any notice. I'm not talking about those 2-3% people who submit their assignment first or second day. There is that kind of people are also available in the class, but most of the us, we do not work for the 14 days. On the 15th day we reach to the teacher and we say that, sir, I was busy in this, I was busy in that, and please allow me some more time, right? And what happens, a teacher says that if you want to submit it by tomorrow, otherwise I'm not going to give you any marks. And what happens, we prepare the whole submission that the people have prepared in the 5, 6, 10 days on one night, and we submit it to the teacher on next day. We work whole night and we submit it next day, and then we claim to our friends that, see what you have done in 7 or 8 days, I have done in only one night and better than you, right? So point I'm trying to make is, we are having enormous capability. We are having enormous capability. We are not able to understand those 2 units through the semester, even with the help of teacher.
even having enough time, but on the last day, on the last night, in fact, right, we are able to understand everything, and we are able to present on the answer sheet also, right? So this is the quality of engineers, right? But that works with the semester exam, friends. That do not works with any of the competitive exams, right? Competitive exams are a very different ball game, and what we see, I'm in Delhi. The Gate Coach head office located in Delhi. We are in the vicinity of IIT Delhi, and IIT students are also of the similar character. They're not different. They are in another engineering college that is IIT. I have seen the students, they are having the same character. Everything is same, right? So what happens is we do not bother about our career since till say sixth, seventh, or sometimes even eighth semester, right? If a good campus company comes to for the campus selection to your campus and you get selected by chance, that's your good luck. Otherwise, what happens? Thousands of students comes to Delhi every year, right? Not only Delhi, there are a number of centers now, but most of them they come to Delhi to prepare for the GATE, to prepare for IES, or to prepare for any other exam, even for the civil services, But everyone knows that almost all the exams, including IES, IAS, you are eligible to write in the final year itself. Even GATE you can write on the third year also, right? So why we do not prepare early? Another thing that is not only the loss of 1 year for you, that is a national loss also. Thousands, even the lakhs of engineers are preparing in capital Delhi for different kind of competitive exams. They're not doing any productive work. They are simply using their parents' money, and they are preparing for one of the exam. Right, that they could have done earlier also. So that is huge loss to the nation also. And just because of this, there are a number of centers in Delhi might have heard about, might have few up, might have seen the film 12th Fail, might have seen the condition of Mukherjee Nagar, right? अगर नहीं देखी है दोस्त तो 12th Fail मूवी जरूर देखना, और मौका मिले तो आज ही देखना, आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है क्या चीज, एंड हाउ द पीपल दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड हाउ दे प्रिपेयर, राइट? बहुत कुछ आइडिया आपको लगेगा उसके बारे में, ठीक है? तो by this way, the see, everybody of us, like you have prepared for the JE or you have prepared for some other exam and you have landed to this particular college, that is Motihari College of Engineering, right? And somewhere in the back of the mind, you are having some plan in the mind that I will go to IIT. Now I will become IAS, right? I will prepare for the IES. I'll start my own business. Everybody is having your own dream, right? But the problem is, if you want to become a civil servant, you want to prepare for the IAS, you're not able to share the same idea with your even with your room partner or your best friend. Why? In the college. Why? Once you will say that I want to prepare for the civil services, immediately your friend is, he knows you, and he will immediately speak. अरे यार पहले पिछले सेमेस्टर पेपर तो निकाल ले, मैं थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा वो, ठीक है? तो क्या बोलेगा, पहले पिछले सेमेस्टर के पेपर जो रुके हुए हैं वो तो निकाल ले, उसके बाद दूसरे बारे में सोचना. So the thing is, we are we are having some dream in mind, but we are not able to start with that, है ना? शुरू कैसे करना है यही समझ में नहीं आता हमें, right? So the thing is, the success is one thing that everybody needs, right? और किसी को किसी तरह की सक्सेस से, मैं नहीं कहता कि everybody want to prepare for the gate, everybody want to prepare for the civil services, but everybody needs certain kind of breakthrough in their life, right? But the thing is, I want to share a little story, then I will come to the PPT, right? Have you heard about Aristotle? Aristotle was a philosopher in the Greek world, and he used to travel from one place to other place with the group of students. ढेर सारे उसके स्टूडेंट साथ में हुआ करते थे, 30-40 हुआ करते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते. और वो तो हुआ ये करता था कि कुछ स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी वो चले जाते थे, और नए स्टूडेंट जुड़ते चले जाते थे. एक गांव में 10-15 दिन वो रुकते थे, वहीं से डोनेशन मांगते थे, और टोटल उन्हें दिन में 2-3-4 घंटे पढ़ाता था. और उसके बाद बाकी के समय वो खुद भी फिलोसफर था, अपनी फिलोसफी सोचता था, वो डोनेशन लेने जाते थे, खाना बनता था वहीं खाते थे. जब लगता था एक गाँव में 10-15 दिन हो गए तो दूसरी जगह चले जाते थे.
दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते थे और इस तरह से उनका कारवां चलता रहता था। दूसरी जगह टेंट लगता था और फिर वहां पर फिर से उनका स्कूल शुरू हो जाता था। लेकिन हुआ ये कि आपको मालूम है ना, हर एक क्लास में एक स्टूडेंट होता है एंड ही आस्क क्वेश्चन जस्ट फॉर सैक ऑफ आस्किंग। जब टीचर सब कुछ पढ़ा करके अटेंडेंस लेकर क्लास से निकलने वाला होगा तो वो जरूर पूछता है क्लास में पीछे से, सर जी ये बोर्ड में जो लिखा है ना समझ में नहीं आया। और आप में से कुछ लोग बोलते हैं यार ये रोज ब्रेक का टाइम हमारा खराब करवाता है, right? So what happened was that the student was there also in the Aristotle's class, and whenever he sees Aristotle बैठा हुआ, he goes to him and he asks that, गुरुजी आत्मा क्या होती है? गुरुजी लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है? गुरुजी फिलोसफी का इसको सर, गुरुजी परमात्मा क्या होता है? गुरुजी रिबर्थ कितने टाइम के बाद होता है? एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड अरिस्टोटल सेड दैट यार यू डिस्टर्ब्स मी लॉट। बोले क्यों गुरुजी हो तो बताओगे नहीं? बोले नहीं नहीं बताऊंगा तो, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हो। बोले अगर मेरे मन में डाउट आएगा तो आपसे ही पूछूंगा और किससे पूछूंगा? बोले वो तो ठीक है लेकिन मैं फिलोसफर भी हूँ टीचर के साथ साथ, मैं अपनी फिलोसफी सोचता रहता हूँ और बीच में आके तुम क्वेश्चन पूछ लेते हो, सारी फिलोसफी की जो चैन होती है मेरी वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो सारा टाइम खराब हो जाता है। बोले फिर क्या करें? बोले जब मैं खाली रहा करूँ तब पूछना। बोले मुझे कैसे मालूम खाली हो गए? जब भी पूछूंगा यही बोलोगे, आई वॉज थिंकिंग फिलोसफी, व्हाट टू डू? He said, do one thing. Whenever we travel from one village to another village, ना, at that time I'm free. उस समय पूछ लेंगे। बोले जैसे गुरु की आज्ञा। लेकिन अरिस्टोटल ने इस बार 15 दिन क्या, 20 दिन 25 दिन कहीं जाता ही नहीं है। 30 दिन 35 दिन जाने का आदेश ही नहीं देता। 35 दिन 40 दिन 45 दिन 50 दिन हुए। वो स्टूडेंट बड़ा परेशान। 50वें दिन अरिस्टोटल ने कहा कि चलो भाई सामान पैक करो, घोड़ों पे रखो और चलना शुरू करो। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नदी के उस दूसरी तरफ, नदी के बाद जो गांव है उसमें चलने वाले। बोले ठीक। जैसे ही सामान पैक हुआ और अरिस्टोटल ने चलना शुरू किया, वो कूद करके आ गए। बोले गुरुजी। बोले क्या? बोले वी आर ट्रैवलिंग। बोले यस वी आर ट्रैवलिंग। बोले नाउ आई कैन आस्क क्वेश्चन। बोले यस यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बट द कंडीशन इज देयर। बोले व्हाट इज द कंडीशन? यू कैन आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम because there are many students, they may also ask questions, but you are allowed to ask first question. I will answer your question first, then I will move further. Okay? तो उसने सोचा कि ये तो एक ही क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहा है, फिर मौका मिले ना मिले, एक ही बार में ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि सारी बातों का आंसर मिले। तो ही सेड दैट गुरुजी एक बात बताइए, हाउ डू आई गेट सक्सेस? बोले सक्सेस फिलॉसफी में? बोले नहीं नहीं, नो गुरुजी, माय क्वेश्चन इज नॉट लिमिटेड टू फिलॉसफी। I need success in philosophy. I need success in relations. I need success in finances. I need success in life. I need success in health. I need all around success. आप तो बता दो हर चीज में सफलता कैसे मिले? अरिस्टोटल ने सोचा बड़ा ही होशियार आदमी है, एक ही बार में सारी बातें जान लेना चाहता है। बोले क्योंकि यार तुमने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोले कर दी वही वाली बात आपने, फिर उस गांव में पहुंच जाओगे और बोलोगे कि अब तो मैं फिलोसफी सोच रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। बोले नहीं नहीं, दिस इज माय प्रॉमिस, बिफोर इंटरिंग टू दैट विलेज आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, बट डू नॉट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन इफ पॉसिबल। उसने कहा जैसे गुरु किया गया। अरिस्टोटल चलता जा रहा है, देखता है क्या है कि अरिस्टोटल तो कुछ सोच ही नहीं रहा, तो नेचर एंजॉय कर रहा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी देख रहा है, चलता चला जा रहा है। दोपहर में रुके पेड़ के घने पेड़ के नीचे, उसके नीचे खाना वाना बनाया गया और अरिस्टोटल की तरफ ध्यान है। बोले गुरुजी, बोले चिंता मत कर, तेरे ही बारे में सोच रहा हूँ। खाना बना, सब लोग फिर दोबारा चले, चलते 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 शाम हो गई। शाम सूरज डूबने वाला है और नदी के किनारे पहुंच गए। नदी क्रॉस करेंगे दूसरा गांव आ जाएगा। नाउ दे हैव टेकन अ बोट ऑन रेंट और उस बोट पे सामान रखा जाने लगा और सब लोग धीरे धीरे उस पर बैठने लगे। तो वो आया अरिस्टोटल के पास। बोले गुरुजी। बोले क्या? बोले देखिए गांव में आ गए और आपने क्वेश्चन का आंसर तो किया नहीं। बोले नहीं नहीं, अभी तो नदी क्रॉस करना बाकी है बेटा। बोले हाँ वो तो ठीक है। बोले चलिए ठीक है बैठ जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुझे बैठना नहीं है। बोले क्यों? बोले ये दूसरा प्रश्न है, मैंने तुझे सिर्फ एक प्रश्न पूछने की परमिशन दी। बोले फिर करना क्या है? बोले नाव साथ में पकड़ ले हाथ से और पानी में चलता चल। बोले गुरुजी नदी गहरी में डूब जाऊंगा। बोले चिंता मत कर, मैं तेरा टीचर हूँ, जो बोल रहा हूँ वो कर, अगर आंसर चाहिए तो। बोले ठीक, कैसा आप बोलते हैं वैसा करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना। बोले हाँ हाँ, अरे तेरा टीचर हूँ यार, ऐसी क्या बात है। तो वो चलने लगा पानी में और बोट आगे बढ़ने लगा। अरिस्टोटल बिल्कुल किनारे बैठा हुआ है और वो नाव पकड़े पकड़े साथ में चल रहा है। अगर आप स्विमिंग पूल में चले होंगे तो आपको पता होगा कि पानी का वाटर का रेजिस्टेंस होता है, चलने में भी दिक्कत होती है और पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे और दिक्कत होने लगती है चलने में। तो बड़ी मेहनत से चला जा रहा है कि अपने प्रश्न का उत्तर तो चाहिए। चलते 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 पानी जो है वेस्ट साइड, आपको मालूम है रिवर का जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे
वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो पानी वेस्ट हाइट तक आ गया, बोले गुरुजी, बोले चिंता मत कर, पानी पेट तक आ गया, पानी चेस्ट तक आ गया, पानी कंधों तक आ गया, पानी नाक तक आ गया, मुंह। अब उसने क्या किया, पैर उठाए, है ना, टो उठाई और ऊपर करके चलना शुरू किया, लेकिन पानी फिर भी, पानी का लेवल तो बढ़ता चला जा रहा। और एरिस्टोटल ने जैसे देखा कि अब इसके पैर जमीन में लगने बंद हो गए हैं और ये बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, एरिस्टोटल ने उसके बाल पकड़े और उसका सर पानी के अंदर घुसा दिया। लोगों को तब तक ऑक्सीजन नहीं मालूम थी, सिर्फ एक ही बात मालूम थी कि अगर जिंदा रहना है तो सांस लेनी पड़ेगी, हवा चाहिए। एरिस्टोटल ने उसके बाल पकड़े हुए हैं और छटपटा रहा है। एरिस्टोटल को लगा कि अगर अब मैंने बाहर नहीं निकाला तो वाटर इनहेल कर जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा। एरिस्टोटल ने उसको 2 4 5 सेकंड के बाद बाहर खींच लिया। जैसे ही वो बाहर निकला, सबसे पहले तो उसने सांस ली। हाँ, बोले गुरुजी, वो प्रश्न छोड़िए, बताइए, नहीं आंसर करना था, नहीं करते आंसर, मारने पे क्यों उतार हो गए आप? बोले नहीं नहीं, मारना नहीं चाहता था दोस्त। बताओ एक बात, कि जब पानी के अंदर थे तब तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्रश्न था, कौन सी सफलता चाहिए थी, या तुम्हें आत्मा के बारे में सोच में आया, या फिर ये आया कि कहाँ पुनर्जन्म होगा, या तुम्हें लगा कि पता नहीं कितने टाइम बाद रिबर्थ होगा, क्या सोच रहे थे? बोले सोचना, मेरे दिमाग में तो एक ही बात थी, कैसे भी करके हाथ छूटे और सांस लेने के लिए हवा मिल जाए, जिंदा बच। बोले हवा के अलावा और भी कुछ चाहिए होगा तुम्हें, तुम्हारे तो प्रश्न होते हैं। बोले नहीं नहीं, हवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। बोले कुछ तो चाहिए होगा, किसी तरह का ज्ञान। बोले नहीं, केवल हवा ही चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ सोच ही नहीं सकता था। अरिस्टोटल ने आंसर किया, बेटा तुम्हें जितनी हवा की जरूरत थी, उतनी अगर किसी भी फील्ड में सफलता की जरूरत होगी, इन एनी फील्ड यू नीड सक्सेस, दैट काइंड ऑफ विगर यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है? Okay, right. Thank you for listening this story with patience. I'm coming to the slide, right? And this is by coach, and uh, the Gate Coach is a 27-year young organization. They're having team of professionals and counselors, association with IIT Delhi and Delhi College of Engineering, now known as DTU. And core group of management includes Mr. H.S. Tewatia, Mr. Saroj A.K. Saluja, Dr. Roma Singh, Dr. Padita, Dr. Amit Tewatia. Myself, Sudhir Gupta sir is ex-IAS, Ankush Gupta sir is also from IIT Delhi. Right. So why this webinar is important to you, right? See, in the final phase of graduation, you are in the, say, you are approaching to the third year, or you are in the final year, or you are, right? You have to decide what you're going to do, right? अभी तक तो ये हो रहा था कि आपको कोडिंग आती है और आपने कोडिंग सीख ली है, आर यू फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस, और आपने कंप्यूटर साइंस की कोई भी स्किल है, बड़ी आसानी से जॉब लग रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस ईयर इन्फोसिस स्टॉप टेकिंग एनी फ्रेश रिक्रूटमेंट, है ना। ऑर्बिट, कैपजेमिनी और ढेर सारी कंपनीज ने इस बार क्या किया, रिक्रूटमेंट बंद कर दिया। कह रहे हैं कि 20% लोग हमारे पास पहले ही बैठे हुए हैं, हम नए लोगों को अभी नहीं ले सकते, राइट। सो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन द मार्केट गोइंग ऑन। तो अब वो जो कंप्यूटर साइंस पे सिर्फ कोडिंग आती है और आपको किसी न किसी कंपनी में जॉब मिल जाती थी, अब वैसा नहीं, आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, आपको मालूम है कि आपके पास ढेर सारे कैरियर हैं, और अब आप क्या करना चाहते हैं, चूज भी करना पड़ेगा। एंड पीपल से टाइम इज मनी, आई से टाइम इज मोर देन मनी, वी वन विद द करोड्स ऑफ रुपीज, यू कैन नॉट बाय वन एक्स्ट्रा सेकंड, राइट। एंड यू नो व्हाट इज द राइट टाइम? सबसे बढ़िया दिन कौन सा होता है नया काम शुरू करने का? द राइट टाइम इज टूडेज। आज का दिन होता है सबसे बढ़िया जब आप काम शुरू करें, ठीक है। आज से बढ़िया कोई दिन नहीं है, राइट। सो coming to these are the content, right? I will send this PPT to you people. मैं मेल कर दूंगा आपको, आप दोबारा भी इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक ना। So this is the content. See, one thing after BTech, either you can go for job or you can go for higher education. अगर आप जॉब में जाते हैं, you can go to PSU or a private job, or you can why to go for job? आप बोलेंगे कि हम खुद अपना काम करेंगे और लोगों को भी जॉब देंगे, है ना। वेरी नाइस आइडिया। इनफैक्ट हायर एजुकेशन, लाइक यू कैन गो फॉर MTech, or you can go for MBA, or you can go for MS, that is post graduation from any international university or any other location outside India, right? After post graduation, you can go for either PhD, or again you can go for job. I have done MTech, you can go for teaching also, right?
That is a very nice job, a very peaceful job, right, and very respectable in India at least, right. So these are the some common opportunities that is available to you. But the thing is how you are going to approach them, right? So job the PSUs, we are having various PSUs. There are more than 99 PSUs, 100 PSUs. In fact, nowadays, NTPC, BHEL, ISRO, NGC, SAIL, DRO, HPCL, and so many BPCL, right? But 99% of these PSUs, they recruit through GATE, right? There is a written exam that we call GATE. I'm going to tell you in detail about the GATE. And after GATE, if you have got very good rank, you can apply to those PSUs. They will call you for interview and sometimes group discussion also, sometimes group task also. Depends upon their requirement कि वो आपको हो सकता है इंटरव्यू तो हर जगह ही होता है, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क भी आपको दिया जाए, राइट. बट 80% वेटेज इज रिलेटेड टू गेट मार्क्स. आपके गेट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो जनरली पीएसयूज में आप रिक्रूट हो जाते हैं, राइट. Then private companies like L&T, GE, Tata Motor, Airbus, TCS, Infosys, so many, right? One thing is campus recruitment. Another thing is you can apply directly to the company with the help of number of different kind of agents available. They will help you to for these recruitments. But one thing is there. If you are having any kind of extra qualification in the hand, you are having any certificate, either you have qualified GATE or you have cleared the CAT exam. आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है और आपने ठीक है आपने एमटेक नहीं किया हुआ, आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड है, दैट हेल्प्स अ लॉट इन गेटिंग रिक्रूटमेंट इन प्राइवेट कंपनीज, राइट. वो बड़ी मदद करता है. जैसे ही आप बताएंगे कि मेरा गेट क्वालिफाइड है या मैंने कैट क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो बताता है कि आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा रहा हुआ है. और अब गेट क्वालिफाइड ही है तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई इसे टेक्निकल नॉलेज है, एंड दे स्ट्रेस मोर ऑन द HR राउंड्स. ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं होते ज्यादा क्योंकि उन्हें मालूम होता है. तो गेट के थ्रू अब आते हैं हम हायर एजुकेशन में. आप जब जा सकते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए क्या है, गेट के बाद आप PSUs में जा सकते हैं या फिर एमटेक ले जा सकते हैं. हाँ, अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं IAS और IES में. तो मैं बता दूं IAS का एग्जाम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान है. कैसे? पहले ऑप्शनल जो होता था वो प्री में ही पूछा जाता था और मेंस में तो 2 ऑप्शनल होते थे. अब प्री में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है. एक होता है एप्टीट्यूड का पेपर जो क्वालिफाइंग होता है, जो BA BCom वाले कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, उसमें बहुत मुश्किल नहीं होती. एक होता है जनरल स्टडीज का पेपर जिसमें वो सारा जनरल स्टडीज पूछते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पूछा जाता है उसमें. एंड दैट इज फिक्स सिलेबस है, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ सकते हैं, फिक्स सिलेबस है उससे पूछा जाता है. प्री में अगर आप जनरल स्टडीज में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देने मिलता है, राइट. प्री का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, आपको मालूम होगा. मेंस के एग्जाम में आपके सब्जेक्ट के जो अभी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप इलेक्ट्रिकल से दे सकते हैं या फिजिक्स से दे सकते हैं या आप ज्योग्राफी से भी दे सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है. जो जिस भी पेपर से आप दे रहे हैं उसके आपके पेपर होंगे 2. जनरल स्टडीज के 4 पेपर होंगे. एक पेपर ऐसे का होगा, एक जनरल इंग्लिश का होगा और एक आपकी मदर टंग का होगा, राइट. लाइक मदर टंग फॉर वी नॉर्थ इंडियन पीपल दैट इज हिंदी, बट दैट मदर टंग पेपर एंड इंग्लिश पेपर दैट इज क्वालिफाइंग ओनली, right. But that optional subject you have to prepare for that. There is a fixed syllabus. There is a fixed syllabus and essay, that is essay for 200 marks. If you are scoring very good marks, you can go for interview. Interview is again for 200 marks, and you will get good marks with the combination of mains and interview marks. Then you will get, there are 26 different kind of jobs. Topmost is IAS, IFS, that is Indian Foreign Service, IPS, Indian Police Service, and so many, right? Indian Revenue Services, Indian Revenue and Indian Railway and Account, this Indian Postal Services, right? There are different kind of services. उसमें आप select हो जाते हैं, right? And now the minimum age to appear for this exam is 21 years for general category, for all people in fact, and maximum for the general category is 32 years. Maximum attempt for the general category is 6. Right, but for the reserve category, the number of attempts are more. The age is also less there, right?
फॉर आईईएस अगेन देयर इज अगेन आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ. इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगेन देयर इज प्री अगेन ऑब्जेक्टिव, बट हियर देयर विल बी टेक्निकल पेपर एंड देयर इज अ जनरल पेपर. दोनों के मार्क्स इंक्लूड होंगे. फिर मेंस आईईएस में जहां पर आपका टेक्निकल पेपर होगा और कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं होते. फिर देयर इज अ इंटरव्यू अगेन, दैट इज अगेन अ 3 स्टेज एग्जाम. एंड आईएएस अगेन इज अ class 1 job, but that is not all India job. Civil services, IAS, IPS, and that is Indian Forest Service. These three are all India services, right? Indian Foreign Service, all India service नहीं ध्यान रखना. IAS, IPS और Indian Forest Service तीन all India job, right? फिर आपको आता है कि भाई नहीं, हमें तो ये टेक्निकल फील्ड और ये पब्लिक एडमिन में नहीं जाना है. वी आर लुकिंग फॉर सम प्रोफेशनल लाइफ थ्रू एमबीए. So there are two different avenues, right? The generally people they appear for the CAT exam, right? CAT के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको मालूम है इंग्लिश, मैथ्स, एप्टीट्यूड ये पूछा जाता है उसमें, right? And then there will be a call from the college. College will take interview. But my idea is either you are going for MTech or you are going for MBA. You should go to top 5-6 colleges only. या तो IIMs में चले जाइए टॉप 5-6 में, या IITs में पहुंच जाइए 5-5 है. अदरवाइज आप सेकंड ग्रेड कॉलेज से फिर अगर MBA या MTech करेंगे तो आप वहीं के वहीं रहने वाले हैं, कोई फायदा नहीं होगा. GMAT is another idea. See, you have taken a job for 1.5 or 2.5 years, and you can appear for the GMAT exam. GMAT is the level of competition is little less, and after 2.5 years of the experience, you go to any college like Indian School of Business, Hyderabad or somewhere else. वहां पर आपको 10 से 12 महीने में आपको एक डिग्री कराएंगे. एंड बिलीव मी, द कैट पीपल दे गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी से एक्स. आफ्टर GMAT थ्रू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और एनी गुड कॉलेज यू विल बी एबल टू गेट 3x सैलरी, राइट? तो क्योंकि आपके पीछे एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है ना जॉब का, दैट हेल्प्स अ लॉट इन गेटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. So this is another idea to start. Now, I'm coming to the main topic, GATE, right? So pattern of exam, recent changes, eligibility and importance of the GATE and how to prepare. I'm going to discuss all these things. Say GATE, one thing you can go with the self study. आप अपने सीनियर से पूछे जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, और उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज स्टडी विद द गाइडेंस. आपको ढेर सारे गाइडेंस अवेलेबल हैं आज की डेट में, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सब्जेक्टिव गाइडेंस, आप क्लासरूम पे पहुंचिए और वहां जाकर के क्लास अटेंड कीजिए गेट के लिए, और वहां टीचर्स पढ़ाते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है. लेकिन मेरा आइडिया एक है इसमें जरूर, कि जब भी आप खुद से तैयारी करें या यू आर प्रिपेयरिंग with the help of a coaching center or preparing with the help of online class, you are preparing with the help of study material, प्लीज डू राइट प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम. कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सिलेबस एंड यू शुड हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. और आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर ऑन अ बेटर वे, because whatsoever the subject you are preparing, you will start writing about those subjects in the form of practice test. You come to know where you are lagging, कहाँ कमी रह गई, कहाँ और प्रिपेयर करना है. तो प्रैक्टिस टेस्ट तो जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जरूर दीजिए, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए. ऐसे मत दीजिएगा जो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन पूछते हैं जबरदस्ती प्रैक्टिस टेस्ट को टफ बनाने के लिए. इंस्टेड ऑफ दैट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन कीजिए और पिछले 10 साल के पेपर किसी भी एग्जाम के लिए जरूर दीजिए. यू विल बिकम टू नो हाउ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज चेंजिंग, राइट, एंड प्रिपेयर इन अ मच बेटर, राइट. तो सिलेबस आपके हाथ में हो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट आप जरूर दें, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएं, और जो डाउट रह जाए उसे जरूर सॉल्व करें. बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते कोई क्यों नहीं सॉल्व हुए वापस जाकर बुक में देखिए. नहीं होता फिर भी गो टू द सीनियर, गो टू द टीचर एंड आस्क अबाउट दोज डाउट्स कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं यहाँ अटक हूँ, क्यों ऐसा, राइट. By this way you will be able to prepare in a better way. तो हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितने ज्यादा करेंगे आपका रिजल्ट उतना ज्यादा सुधरेगा. नाउ एवरी एग्जाम इज एवरी गेट एंड मेजर एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सिविल सर्विसेज नहीं है अभी भी कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं. तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर पे टेस्ट देने बैठते हैं तो आपका कैलकुलेटर, जो कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर है, डेस्कटॉप कैलकुलेटर, उस पर आपका हाथ ही काम नहीं करता, क्योंकि आपको तो हैंडल कैलकुलेटर की आदत पड़ी हुई है.
preparing for the exam, you should start practicing with the desktop calculator, जिससे आपको आदत हो, उससे आपको कैलकुलेशन फास्ट करते बने। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप 2 मिनट का टाइम भी वेस्ट करते हैं, आप 3 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, तो आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, राइट। सभी को मालूम है, वैसे आप जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दूं दैट गेट एग्जाम वंस इन ईयर होता है, फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, सैटरडे संडे में। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से मॉर्निंग और इवनिंग पेपर होते हैं, राइट। एंड यू अप्लाई फॉर 2 डिफरेंट पेपर्स आल्सो। 2 अलग अलग पेपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप बोलेंगे मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से देना चाहता हूँ, अवेलेबल है, कर सकते हैं आप। गेट पेपर 30 डिफरेंट स्ट्रीम्स में होते हैं, और इस बार जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं वो है डेटा साइंस और एआई, न्यूली एडेड सब्जेक्ट हैं। ड्यूरेशन 3 घंटे का है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 65 होते हैं। 65 किस तरह से होते हैं कि 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क वाले होते हैं, और 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले होते हैं। तो 30 मार्क्स 1 नंबर वाले, और 70 मार्क्स 2 नंबर वाले, 35 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर रिमेनिंग टाइप में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू होते हैं। एमएसक्यू मतलब एक ही ऑप्शन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये नया एडिशन है कि हो सकता है ए भी सही और बी भी सही, और आपको दोनों मार्क करना पड़ेगा। फिर होता है फिल इन द बैंक टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको एग्जैक्टली वहां पर डेटा मार्क करना पड़ता है विद द 2 डिजिट ऑफ द डेसिमल्स। उसमें लिखा होता है कि डेसिमल के कितने डिजिट तक आपको सही मार्क करना है। आपको यूनिट का भी ध्यान रखना होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि उनका आंसर न्यूटन में आया, वहां पर पूछा है किलो न्यूटन में, आप गलत मार्क करके चले आए, है ना। कंप्यूटर को ये नहीं मालूम होता कि आपने सारा सब कुछ सही निकाला था, लेकिन आपने यहाँ लिखने में गलती कर दी। तो ये भी प्रैक्टिस टेस्ट में आप देंगे तो आपकी आदत पड़ेगी, आपको समझ में आएगा हम यहाँ गलती कर। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताया, 1 मार्क वाले 30 क्वेश्चन है, 2 मार्क वाले 35 क्वेश्चन है, एंड 1 रॉन्ग मार्क फॉर, तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव हो जाएगा, 2 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए 2/3 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा, जो एनईटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहां पर आप जो आंसर लिखेंगे तो 0 मिलेगा, या फिर आपने सही लिखा है तो आपको आंसर से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नो, See, this is the most important thing in which you are interested, right? आपने गेट का एग्जाम दिया एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक. गुड रैंक मीन्स यू आर इन द टॉप 200, top 300 rank. Then you can apply for, you will get a call from PSUs. I'm talking about the general category, right? आपका 200-300 के आसपास रैंक आई तो आप क्या कर सकते हैं, पीएसयूज के लिए आपको कॉल आएंगी, और पीएसयू के अलग अलग पीएसयू में ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एज फॉर द पीएसयू इज जनरली 27 ईयर्स, किसी किसी के लिए 28 है, और गेल एकमात्र पीएसयू है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, राइट। बाकी सारे ज्यादातर पीएसयू में मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। गेट में अटेम्प्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन इफ यू आर एज ऑफ 60 ईयर्स यू कैन राइट द गेट एग्जाम इफ यू वांट टू गो फॉर एमटेक। तो एमटेक करने के लिए एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ। लेकिन अगर पीएसयू में जाना चाहते हैं तो ज्यादातर पीएसयू में मैक्सिमम एज है 27 साल, राइट। तो पीएसयू से आपको कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए या ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, और नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से, और उनकी रिक्वायरमेंट है, कब उनकी वैकेंसीज ज्यादा है, कम है, किस साल है, नहीं है, डिपेंड्स 100% ऑन द पीएसयूज। जरूरी नहीं कि हर साल वैकेंसीज आए ही, हो सकता है कि इस साल बहुत ज्यादा है और किस साल बहुत कम है, ये चांस की बात। बट that amount of salary that you'll get through PSUs is written here, right? और कम से कम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएनजीसी है ना, आईओसीएल, बीपीसीएल, इनकी जो सैलरीज है, यू विल बिलीव, वोंट बिलीव मी, वो इनिशियल सैलरी जो आईएएस और आईईएस की होती है उससे भी ज्यादा है। एंड नॉट ओनली दिस सैलरी बट वर्क आल्सो। वर्क मीन्स आपको जो बाकी फैसिलिटीज मिलती हैं साथ में, वो सारी चीजें दैट इज आल्सो अवेलेबल टू यू, एंड इज अ वेरी पीसफुल जॉब फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट पीएसयूज। बट फ्यू पीपल दे से दैट कि नहीं, हमें तो पीएसयूज के लिए नहीं जाना है, हम एमटेक के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं। ये बुक लिस्ट है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने दी हुई है यहाँ पर। तो मैं ये पीपीटी भी आपको भेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स है ना, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो मैंने अपने यहाँ के टीचर से पूछकर बनाई है, उन्होंने मुझे ये बुक्स बताई हैं। तो आप ये बुक सेट है आपके लिए, जो आप गेट के प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट साथ ही साथ ध्यान रखें कि आप
नोट्स मिल जाए कहीं से तो बेहतर रहेगा गेट के, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाए और बढ़िया है ना। अनसॉल्व तो आपके पास कम से कम होने ही चाहिए, और सिलेबस तो आप कभी भी 1 मिनट के अंदर अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ कमिंग टू one of the very important thing, like most of us we are having problem कि सर अभी तो बीटेक में ही इतना पैसा खर्च किया, अब आगे क्या। So the MTech from any of the institute in India, the minimum scholarship is 12,400 rupees per month। 12,400 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने, ठीक है, एमटेक के दौरान। बट फॉर फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट्स लाइक निर्मा और बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्कॉलरशिप 20,000 रुपये भी दे रहे हैं, राइट, 2 ईयर एमटेक प्रोग्राम। अगर आप एमटेक और पीएचडी के कंबाइंड प्रोग्राम में जाते हैं तो पीएचडी के समय जो स्कॉलरशिप होती है दैट इज 28,800 रुपीज, 28,800 रुपये मिलते हैं, जो शायद अब बढ़ रही 35,500 होने वाली, राइट। ये गेट वाली स्कॉलरशिप भी काफी दिनों से नहीं बढ़ी है, तो चांसेस हैं कि ये भी इस साल से शायद ये स्कॉलरशिप भी बढ़ जाएगी। और मैंने सुना है कि ये 18,000 मिनिमम होने वाली, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसलिए मैं इसे कोड नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन 12,500 रुपये स्कॉलरशिप जो आपको बताई वो तो सारे कॉलेज देते ही देते हैं, ठीक है। नाउ रैंक वाइज लिस्ट, ध्यान रखिएगा, आईआईएससी बैंगलोर इज द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज, and for this particular college if your rank is less than 100 then only you get admission, otherwise not। ये चीज से भी ऊपर जाता है इस कॉलेज में। अगर आईआईएससी बैंगलोर में आपको एमटेक करने मिल जाता है और सक्सेसफुली एबल टू कंप्लीट द एमटेक फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर, then no dearth of job for you, right? You can go to any organization, even you'll be hired by the American companies, you'll get very very good salary and very very good opportunities, but you should have the dedication to work hard in 2 years of the MTech in top 5-6 IITs। So if you are willing to do MTech, go for MTech, that is very very good। In that case you should go for either IISc or Mumbai or Kanpur or Delhi or Madras, that we call Chennai। Up to this the list is okay, even Kharagpur is okay, but not beyond that, right। मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप एमटेक ही करेंगे, सिर्फ पता चला आपने किसी एनआईटी से एमटेक ज्वाइन कर लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, या फिर आप आईआईटी गुवाहाटी पहुंच गए या किसी आईआईटी बनारस पहुंच गए, वहां से आप एमटेक करें, डिग्री तो होगी, डिग्री की वैल्यू है अपनी, बट ऑन दिस बेसिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ वेरी गुड जॉब, राइट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, राइट, उसे इस लेवल तक प्रिपेयर कीजिए कि आप टॉप पर जाकर खड़े। नाउ कमिंग फॉर द these are our results for the GATE exam in the last few years, right। ठीक है। And now the most important part, I'm inviting questions। जो चीजें थी जो मुझे बतानी थी वो मैंने बताई, साथ में आप क्वेश्चन पूछेंगे और ढेर सारी और चीजें मैं आपको बताऊंगा। शेखर जी, सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन, प्लीज जो भी लोग पूछना चाहें प्लीज बताइए क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you, sir, for your presentation. We will also get questions from auditions. So, those who want to ask questions, please raise your hands. सर, उससे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन है हम लोग के पास जो स्टूडेंट्स हैं। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो भी होता है तो वो उसका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे हाउ टू प्रिपेयर विद सेमेस्टर, हाउ टू प्रिपेयर गेट विद सेमेस्टर। वेरी गुड क्वेश्चन शेखर जी। पहली बात, जब आप गेट का सिलेबस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा दैट द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द 5th 6th 7th semester related to GATE exam, right? So if you're preparing, you should start preparing by the end of 4th semester, ideal way। So what will happen, what some of the subjects in your syllabus of the college and that matches with the GATE syllabus, you should prepare those subjects for the GATE also, right? आप उसके objective question भी solve कीजिए। What will happen, one of the extra benefit is your college result will also improve, right? Another thing, now there are recorded lectures available, you are not able to attend any class, like your college going student are not able to attend online classes, even offline classes की तो बात ही नहीं कर रहा, then recorded lectures available with the help of pen drive of various engineering colleges, हमारे यहाँ से भी available होता है, and that is very cheap, right? I'm having offer for Motihari College also that I will speak at the end, right? So you can buy those lectures. Everybody is having laptop now, so you can download those lectures with the help of one of the software, and you can read the same subjects with your college। तो आपका कॉलेज का रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाएगा और आपका गेट का भी, क्योंकि गेट का सिलेबस जो है दैट इज द सिमिलर सब्जेक्ट विद द what you call your BTech syllabus, but the thing is there are only 10 to 11 subjects that you have to prepare, not the whole BTech subjects। And importantly the GATE questions are conceptual, तो जब गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हो जाएंगे,
आपका कॉलेज का रिजल्ट भी सुधरेगा और गेट भी साथ साथ प्रिपेयर होता चला जाएगा, राइट? दिस इज वन। अदरवाइज इफ यू आर एबल टू अटेंड वीकेंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस, दैट इज अनदर। आपकी चॉइस है आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए 5th सेमेस्टर की शुरुआत से, राइट? Okay, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। Okay, sir. Now, those who want to ask question, raise your hands or ask in the chat section. यस गाइस प्लीज, कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज पूछिए। या या देयर आर ला, हाँ या देयर आर, या राइट, ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन। ह्यूज अमाउंट ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट द प्रॉब्लम इज कि यूट्यूब में जो भी क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं, राइट, वो क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं या वहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ अच्छा विश्वजीत, आपके भी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ठीक है। शेखर जी, इफ पॉसिबल विल यू डू वन थिंग, आप एक एक करके क्वेश्चंस मुझे पढ़ते जाएंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, उसके बाद अगर, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए यूट्यूब में देर आर समटाइम्स देर आर लेक्चर्स दोज आर नॉट अप टू द मार्क, और कभी कभी कोई भी लेक्चर डाल देता है और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। तो स्टैंडर्ड जो लेक्चर्स हों वही यूट्यूब से पढ़ें। यूट्यूब में ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप कोई भी टॉपिक डालिए आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड हो, इस बात का ध्यान रखें। अनदर थिंग, यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम और होती है कि आप पढ़ तो लेंगे, डाउट सॉल्विंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको पास कोई ना कोई डाउट सॉल्व करने वाला होना चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ लें और आप क्वेश्चन करने बैठे या कोई आपको डाउट हो, तो वो आपके कॉलेज के आपके टीचर हों या आपका कोई सीनियर हो या आप किसी और टीचर से जुड़े हों जो आपके डाउट सॉल्व कर सके। तो यूट्यूब में ढेर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट स्टैंडर्ड लेक्चर से स्टैंडर्ड कंटेंट ही पढ़ें। और बताइए दूसरा क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. Next question is हाँ from Vishnu. Is self-study sufficient for gate preparation? yes, self study is sufficient for gate preparation. Huge amount of material available online, you can prepare by your own also। आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस एक ही दिक्कत होती है, अगर आपका सफिशिएंट टाइम। कोचिंग का फायदा क्या होता है, कोचिंग के दो फायदे होते हैं बेसिकली। एक तो आपको माहौल मिल जाता है कि बाकी लोग भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता चलता है वो कैसे पढ़ रहे हैं और आपको कैसे पढ़ना है। दूसरी बात ये होती है कि आपको डाउट होते हैं तो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, आपका एक रिदम बन जाता है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया वो आपको भी कंप्लीट करना है। लेकिन आप डेडिकेटेड हैं, आप खुद अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं, और अगर आपके डाउट्स हैं कोई क्लियर कर सकता है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक डाउट की प्रॉब्लम आती है जो हाँ, और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद से जब पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत में तो बड़ा जोश होता है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम we start leaving that particular schedule. So what we should do is we should prepare a fixed timetable and we should start working in that area. Self study is okay, not a Yes, sir. problem. एक एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम लोग का कॉलेज जो है वो 10 to 4 PM चलता है, तो Mhm. हाउ टू मैनेज टाइम फॉर गेट प्रिपरेशन बिटवीन दीज आवर्स एंड आफ्टर दिस? See, I have told you that in whatsoever semester you are, you should start preparing the same subjects of that semester with the gate syllabus also. First of all. So उस gate semester के साथ prepare. Another thing is, if you are in the fourth or the fifth, somewhere in the fifth semester, and you start preparing for 1.5 or 2 hours daily, GATE is not IES or IAS. GATE is a very easy exam. Another very important thing I'm going to tell you is, first of all, so GATE is a very easy exam. You can prepare it very well. अगर आप दिन में 2-3 घंटे पढ़ते हैं एक्स्ट्रा गेट के लिए, या 2 घंटे पढ़ते हैं, that is more than sufficient for started preparing from the fifth semester. First thing. Second important thing is 30% mark. The 30 marks of the gate exam is नॉन टेक्निकल। 15 मार्क्स का मैथ्स आता है, दैट इज M1 M2 M3, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, वो बड़ा इजी सिलेबस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, दीज आर द सब्जेक्ट देयर। एंड 15 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड। And believe me, in the last almost 12 years of the aptitude question जब से आना शुरू हुए, I have never seen even a single
क्वेश्चन दैट इज डिफिकल्ट इन एप्टीट्यूड और इवन इन मैथ्स. सो द थिंग इज 30 में से 30 मार्क्स तो यहीं पर आ जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. गेट एग्जाम में क्वालिफिकेशन कितने मार्क्स में आती है? 28, 29, 30, 32, 33, मैक्सिमम 35, 40 मार्क्स तक आ जाती है. 30 मार्क्स तो बहुत ही ईजी हैं, वेरी इजी. इफ दोज 30 मार्क्स आर देयर दैट यू कैन प्रिपेयर इजीली, आप 30 में से 30 ला सकते हैं. फिर भी लोगों का गेट क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि यार ये तो हम एप्टीट्यूड कर ही लेंगे. बट वी विल गो विदाउट प्रिपेयरिंग एप्टीट्यूड. आपको 8-10 दिन ही एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा और आप 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं. लेकिन वो क्या करते हैं लोग, वो 15 मार्क्स वो 8-10 दिन भी नहीं पढ़ते. एंड द प्रॉब्लम इज यू आर गोइंग टू लूज दोज 15 मार्क्स. आपको उसमें से 4-5 फिर भी आ जाएंगे, आप वहां पर बैठ के कर लेंगे, वो 10 मार्क्स आपको नहीं आएंगे. बट थिंग इज वो इजी मार्क्स हैं, वो 30 में से 30 तो आने ही चाहिए. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब सुबह उठें तो आदत डाल लें 15 से 20 मिनट आप 2-3 क्वेश्चन या तो मैथ्स के एप्टीट्यूड के सॉल्व करेंगे. बहुत बेसिक आइडिया बता रहा हूँ जो मैं क्लासरूम में भी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ. रीजन ये है, वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग 15 से 20 मिनट शुरुआत की, आप सुबह के 15 से 20 मिनट आप एप्टीट्यूड या मैथ्स पढ़ेंगे, that will reduce your time for preparation of these subjects. Another thing, the brain will remain active. रोज सुबह 2-3 क्वेश्चन मैथ्स और एप्टीट्यूड के जरूर लगाइए, ठीक है. उससे आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और आपको इन सब्जेक्ट्स के अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन सिलेबस के साथ चलिए, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और लगा लिया. आप सिलेबस उठाइए, उसमें से एक एक टॉपिक 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके कंप्लीट करते चलिए. और जो साथ में सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाइए गेट के लिए, और उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, आपको सब्जेक्ट पक्का हो जाएगा. वन इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट थिंग इज रिवीजन. जब भी आपका सेमेस्टर खत्म होता है, आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, उस समय आप उन सब्जेक्ट को रिवाइज जरूर करें. हमें क्या होता है कि हमें तो यही नहीं मालूम होता कि पिछले सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा. हम अगले सेमेस्टर तक भूल जाते हैं, हम इंजीनियर्स की आदत है. लेकिन गेट के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आपको वो सब्जेक्ट जब एग्जाम देंगे फरवरी तक याद रखना है. तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप मिड सेमेस्टर ब्रेक में, एंड सेमेस्टर ब्रेक में आप उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज जरूर करें. रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दीज एग्जाम्स. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from Alok Kumar. How to identify the proper channel is standard or anything? Just Yeah, right. Alok, this is if you are either that channel belongs to any standard coaching or any senior teacher जिसके आपको credentials पता हो, तो ठीक है. अदरवाइज ऐसे देख कर पता करना कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, राइट. तो कोई स्टैंडर्ड टीचर, कोई सीनियर टीचर पढ़ा रहा है, देयर इज एनपीटीईएल लेक्चर्स अवेलेबल, वो आप देख सकते हैं, 2000 स्टैंडर्ड लेक्चर्स. अदरवाइज कोई बड़ी स्टैंडर्ड कोचिंग है और उसके ऑफिशियल चैनल पे कुछ पड़ा हुआ है, दोज आर वेरी गुड. अदरवाइज यू नो सम टीचर एंड ही हैज पब्लिश समथिंग, देन इज ओके. अदरवाइज द नंबर ऑफ कंटेंट दोज आर नॉट करेक्ट. आई हैव सीन कि लोगों ने बड़ी बेसिक सी गलतियां भी यूट्यूब लेक्चर्स में कर रखी हैं, और यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी डाल सकता है, तो लोगों ने वहां डाला हुआ है. तो एनपीटीईएल के लेक्चर स्टैंडर्ड है, या फिर किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के लेक्चर देख लीजिए, या कोई स्टैंडर्ड टीचर जिसे आप जानते हैं उन्होंने वीडियो डाल रखे हैं तो वो देख सकते हैं. यस, देखा जी. okay. Now, those who want to ask some more questions, they can ask. They're free to ask. So Yes, one please. doubt. Any doubt, please? One more thing that I want to share with you people, anybody who is from the Motihari College of Engineering and they want to take any services from the Gate Coach, we are having our standard book set available, we are having our test series available. हमारे पास ऑफलाइन तो क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन तो खैर आप वहाँ से नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस लाइव भी हैं और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं. आप किसी भी तरह की सर्विस लेना चाहते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 40% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू प्रोड्यूस मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आई कार्ड, राइट. किसी भी सर्विस के लिए आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, राइट. आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं गेट कोच से.
जो भी हमारी स्टैंडर्ड फीस है उसको 40% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए मुतहरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का आई कार्ड आपको उसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी, राइट? दिस इज फॉर योर कॉलेज ओनली. So one doubt is coming that if a student is watching a lecture of 1 hour, it took 130 to complete with a proper notes, and because of this, he or she can't be able to attend more than 3 classes. So how to overcome this problem, sir? See, total GATE course is of approximately major subjects are of 450 hours में सारे ही subjects की जो classes है that सारे ही subject level 450 घंटे में हो जाते हैं, right? So if you are having 600 hours through your journey of GATE preparation, आप सारा सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़कर समझने बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ नोट्स बना लिए उससे काम नहीं चलेगा, आपको वो चीज समझनी ही पड़ेगी, राइट? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको कोई 1 घंटे की वीडियो में 1.5 घंटे का टाइम लगता है, इट्स गुड इनफ. अगर आप समझ कर रहे हैं कोई काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, आप आराम से कीजिए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके घंटे का लेक्चर में 1.5 घंटे लगता है, इसका मतलब 450 घंटे का लेक्चर आपका 600 650 घंटे में खत्म हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. One more question: which branch is good, triple, double E, or EC? It totally depend upon your area of interest. आप पहले सिलेबस देखिए और आप देखिए कि आपका सिलेबस किससे ज्यादा मैच करता है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इजी लगते हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. डजंट मैटर ट्रिपल ई और ईसीई, राइट? कोई भी आप कर सकते हैं प्रिपेयर, दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं आज के डेट में, राइट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्यू टिप्स अबाउट द गेट एग्जाम. सी, नेगेटिव मार्किंग इज देयर, लेकिन आप टेस्ट पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं कि आप 100% श्योर हैं तभी आंसर कर रहे हैं. अगर आपको थोड़ा डाउट है तो यू शुड टेक 10-20% रिस्क आल्सो. आपको मालूम है 2 आंसर्स, 4 में से 2 सही नहीं है और ये ज्यादा सही लग रहा है, आप एक काम कीजिए, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देने बैठे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप 2 तरह से आंसर्स लगा कर देखिए. पहला आंसर आप लगाइए जिसमें आप 100% श्योर हो उस तरीके से, और दूसरे में लिखिए लीजिए थोड़ी रिस्क, और देखिए आपका स्कोर किस में बेहतर आ रहा है. मेरा कैलकुलेशन ये कहता है जिसमें आप थोड़ी रिस्क लेंगे उसमें आपका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर ये होता कि आपको 100% सही है तभी आंसर करना होता तो क्या होता? कोई भी एग्जाम वाले ये करते कि सही क्वेश्चन का 1 मार्क और गलत क्वेश्चन के -1. ऐसा नहीं होता. सही क्वेश्चन का 1 मार्क, और अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सही नहीं किया है तो उसके लिए -1/3 मार्क्स है वहां पर केवल. इसलिए वो चाहते हैं कि आप थोड़ा रिस्क लें, ठीक है, तब आपके मार्क्स क्या होंगे, बेहतर आएंगे. तो दूसरी बात ये है कि मेरा मानना है जब गेट का पेपर आप देने बैठे तो मान लीजिए अगर पेपर का आपको जो एडमिट कार्ड आया उसमें पेपर है आपका 9 से 12, है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि 9 से 12 में जब आप टेस्ट पेपर देने बैठे, जब भी आप टेस्ट पेपर जिस भी दिन देने बैठते हैं तो उस दिन 9 से 12 में बैठिए. आपको आदत पड़ी होगी उस समय आपके दिमाग को एक्टिव रहने की, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि आप पहले एप्टीट्यूड और मैथ्स जल्दी से कंप्लीट करें, वो इजी पार्ट है ना? और फिर आप क्या कहते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर जाएं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पेपर के लिए जो टाइम दिया गया, ऐसा नहीं कि पता चला आप कहते हैं कि नहीं मैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ कर आया हूँ एंड आई हैव टू राइट एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर, because there is a limited time available. You cannot fight with the question. A few questions that will take more time, just leave that. Attempt rest of the questions. Nobody is able to do 100%. Till now in the GATE exam, nobody has scored perfect 100. You will, right? It's not easy. And I should not say impossible. That's not easy, but right. So the thing is, what you have to do is you should prepare with the strategy that you will go with the aptitude and maths first, and then you should be able to see the whole paper at least once, right? कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि आप गलती कर जाएं कि कोई क्वेश्चन ही आपसे देखे बगैर आपसे रह जाए, वो नहीं आपसे गलती होनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और एक क्वेश्चन में उन्होंने 15 मिनट खराब कर दिया, वो काम आपको नहीं करना, राइट? GATE exam is on 11th February. About 1 month is left in, not 1 month, more than 1 month is left. In this meantime, how to increase your self-motivation, how to avoid distraction, and what should be done, what should not be done in this last month. First of all is for the last 1 month of that means from 11th of January, you should not start reading any new subject, right?
Another thing, whatsoever you have prepared till now, that is okay. अगर आपने प्रिपरेशन जिन सब्जेक्ट की है उसमें आप ध्यान दें कि ज्यादा क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, मैं मानकर कह रहा हूँ, तो आप उन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके क्वेश्चंस कितने तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनका जरूर करें, जरूरी करें, राइट। और जो नीचे क्वेश्चन है रिवीजन स्ट्रेटजी, तो अब तो अगर आप इस बार का गेट दे रहे हैं, गेट 2024, तो आपको जनवरी के महीने में 10-11 तारीख के बाद केवल रिवीजन ही करना है, आपको नए सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, पहली बात। और ध्यान रखिएगा, जितना टाइम आज की रात में ना, उतना एग्जाम के पहले दिन वाली रात में उतना ही टाइम होता है, तो उस दिन पूरा टाइम रात भर नहीं जगना है। आज पढ़िए, आज ज्यादा मेहनत कीजिए, उस दिन रात को आराम से सोइए, जिस दिन अगले दिन आपका दिमाग अच्छे से काम करे। सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि रात को पढ़ेंगे अगले दिन जाकर सारा लिखाएंगे, दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। दैट इज कॉन्सेप्चुअल पेपर। तो अभी से अच्छा टाइम दीजिए, एंड बिलीव मी, आपके पास 40-50 दिन भी हैं, और आप 10 में से 5-6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करके चले जाते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, लेकिन अगर अभी आपको लगता है कि मैंने कुछ पढ़ रखा है और अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तो 5-6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपको टफ लगते हैं या लगता है कि उसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लीव द सब्जेक्ट्स, और जनवरी में 10-11-12 तारीख के बाद आप रिवीजन ही कीजिए, नए सब्जेक्ट ना पढ़ें, और जो भी प्रिपेयर करके जाएं उसको इतने अच्छे से करके जाएं कि वो आप आंसर, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो द लास्ट मंथ में, लास्ट टाइम में आपको यही करना है कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, नए सब्जेक्ट की बजाय जो पढ़ा हुआ है उसे पुख्ता करने में टाइम दें, राइट। एनी मोर क्वेश्चन? Anybody has any question? Is there? Otherwise, we will end this session. I think, sir, question is over. Okay, right. So now I'd like to request Yasraj sir to present the vote of thanks. Yasraj Good sir. evening. Yeah. Good evening to one and all present here. I am Ishad Weber, final year student from Department of Electrical and Electronics Engineering and President of a Students' Council. Here I would like to take a moment to present a vote of thanks on behalf of our department and whole Student Council. I want to express our deepest appreciation to our distinguished speaker, Mr. Priyans Vardhan Jain sir. Sir, your words have resonated profoundly with us, leaving a lasting impact on our minds. I extend my sincere gratitude for sharing your insights and expertise with us. Also, I would like to thank my extremely dedicated team and cordial audience. Thank you for joining and staying with us all throughout the session. This brings us to the end of today's session. Thank you so much, sir, once again for taking time from your busy schedule. Stay tuned with us as in future we will have regular session and events like this. Also, there is a lot of things and events planned in our bucket which we will present to you in future. Thank you everyone once again. Till then, stay safe, have fun, and bye bye.